Good afternoon and a warm welcome to all dear students. I hope you are learning and enjoying statistics. There are two questions on the screen and let us discuss them simultaneously so that you come to know what the difference between the two questions is, and comparative study is always good. You get a clear idea. So please write down the question. First question is, find the value of coefficient of variation for the following data. The data is number of days for which absent. So this is data pertaining to students. Number of days for which absent. In the bracket they have written less than. So the entries are 5, 10, 15 up to 45 by a difference of 5 each. Please write down the question, both the questions, so that we can compare the two questions and obtain their solution. So I hope you have written down the question. The question is number of days for which absent less than 5. The number of students which are absent for less than 5 days is 29. 29 number of students in a class were absent, or in a school say 29 number of students were absent for less than 5 days. Now they were absent for less than 5 days means they were absent either for 0 days, that means no absentee, or 1 day. They are absent for 2, 3 or at most 4 days. 5 दिवसांपेक्षा कमी ॲबसेंट राहणारे विद्यार्थी म्हणजे ते एकतर ॲबसेंट नव्हतेच किंवा एक दिवस ॲबसेंट होते, 2, 3 किंवा 4, जास्तीत जास्त 4 दिवस ॲबसेंट होते. तर अशा विद्यार्थ्यांची काउंट आहे 29. ऑन द सेम लाइन्स, नंबर ऑफ स्टुडंट्स हु वर ॲबसेंट फॉर लेस दॅन 10 days is 224. क्वेश्चन का अर्थ समझून घेऊयात. क्वेश्चन को समझने की कोशिश करते हैं. डेटा को 10 दिन से कम एब्सेंट रहने वाले विद्यार्थियों की संख्या है 224. 224 ऐसे विद्यार्थी है जो 10 दिन से कम एब्सेंट थे. 10 दिन से कम एब्सेंट थे मतलब या तो वो 0 days एब्सेंट थे. बाय 0 days एब्सेंट आई मीन 100% प्रेजेंट. या तो वो 1 दिन एब्सेंट थे, 2 दिन एब्सेंट थे, 3 दिन एब्सेंट थे, या 4, 5, 6, 7, 8, 9 दिन तक एब्सेंट रहने वाले विद्यार्थियों का काउंट है 224. 15 दिन से कम एब्सेंट रहने वाले विद्यार्थियों का काउंट है 465. 20 दिन से कम एब्सेंट रहने वाले विद्यार्थियों का काउंट है 582. 25 दिन से कम एब्सेंट रहने वाले विद्यार्थियों का काउंट है 634. 30 डेज से कम मतलब जो 29 डेज एब्सेंट रहे पूरे एक सेमेस्टर में या पूरे एक साल का डेटा हो सकता है,
30 दिन से कम एब्सेंट जो रहे, मतलब 0 से 29 दिन तक एब्सेंट रहने वाले विद्यार्थियों का काउंट है 644। 35 दिन से कम एब्सेंट रहना, यानी 35 दिन से कम एब्सेंट रहना मतलब 0 से 34 दिन तक जितने विद्यार्थी एब्सेंट थे, कोई विद्यार्थी 0 डेज एब्सेंट था यानी वो थ्रू आउट प्रेजेंट था 100%, 1 डे एब्सेंट, 2 डेज एब्सेंट, 3 डेज अप टू 34 डेज। 34 डेज तक एब्सेंट रहने वाले विद्यार्थी 650 है, और 40 दिन से कम एब्सेंट रहने वाले विद्यार्थी 653 है, और 45 दिन से कम एब्सेंट रहने वाले विद्यार्थी यानी वो विद्यार्थी जो 0 से लेके 44 डेज तक एब्सेंट रहे, जिनकी अटेंडेंस में 0 से लेके 44 टाइम्स, ये इसमें से कोई भी बार ए एब्सेंट आया हो, ऐसे 655 विद्यार्थी है। तो आई होप ये टेबल की रीडिंग्स आपको समझ में आ गई है। इज दिस क्लियर डियर स्टूडेंट्स? इज दिस क्वेश्चन क्लियर डियर स्टूडेंट्स? यस मैम। पहला क्वेश्चन समझ में आ रहा है आपको? यस मैम। डेटा समझ में आ रहा है पहले क्वेश्चन का? यस, एनीवन? Is the screen visible? Am I audible? Is the data of first Yes, question ma'am. clear? First example. Am I audible, dear students? Yeah मैम। Yes, ma'am. Am I audible, dear students? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Okay. Screen is visible. Okay. Let us proceed. So first question is, find the value of coefficient of variation for the following data. The data is pertaining to students attendance, number of days for which absent less than is first column, and number of students is second column. And second question is, calculate coefficient of variation for the following data. The data is again pertaining to students, but it is related to their performance in class test or exam. Marks more than, this is marks more than, and in the previous example it is attendance or absent less than, more than, less than. This is one difference. So also write the second question. Marks more than 0. Student scoring marks more than 0 is 100 in number. So no one is scoring 0, all are scoring more than 0, and the total count of students scoring more than 0 is 100. Students scoring more than 10 marks is 90. 10 मार्क्स से ज़्यादा स्कोर करने वाले विद्यार्थी 90 है, मतलब उनका स्कोर 10 से ज़्यादा है। 20 से ज़्यादा स्कोर करने वाले विद्यार्थी 75 है। 30 से ज़्यादा स्कोर करने वाले विद्यार्थी 50 है। 40 मार्क्स से ज़्यादा स्कोर करने वाले विद्यार्थी 20 है।
50 मार्क्स से ज़्यादा स्कोर करने वाले विद्यार्थी 10 है, 60 के ऊपर जाने वाले 5 ही है। 5 ब्राइट स्टूडेंट्स ले सकते हैं हम, और 70 के ऊपर जाने वाले 0 है, किसी को भी 70 के ऊपर मार्क्स नहीं आए हैं। तो ये डेटा क्वेश्चन नंबर 2 का है या एग्जाम्पल 2 का है। दोनों भी केसेस में हमें कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन निकालना है। पहले एग्जाम्पल में नंबर ऑफ डेज फॉर विच एब्सेंट लेस देन दिया है, दूसरे एग्जाम्पल में मार्क्स मोर देन दिया है, लेस देन मोर देन, और स्टूडेंट्स का काउंट दिया है। फॉर एग्जाम्पल पहली एंट्री के बारे में डिस्कस करते हैं। नंबर ऑफ स्टूडेंट्स फॉर विच एब्सेंट लेस देन 5, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इज 29। मतलब 29 ऐसे स्टूडेंट्स हैं जिनकी एब्सेंटी क्लास में 5 से कम है, 5 से कम है उनकी एब्सेंटी। मतलब वो 4 बार एब्सेंट होंगे, या 3 बार एब्सेंट होंगे, या 2 बार एब्सेंट होंगे, या 1 बार एब्सेंट होंगे, या 0 बार एब्सेंट होंगे। 0 बार एब्सेंट होंगे मतलब एक भी बार एब्सेंट नहीं थे, सब हर बार वो प्रेजेंट ही थे। एक रीडिंग यहाँ की एक्सप्लेन करती हूँ मैं। मार्क्स मोर देन एंड नंबर ऑफ स्टूडेंट्स। मार्क्स मोर देन 0, 0 से ज़्यादा अंक प्राप्त करने वाले विद्यार्थियों का काउंट है 100। 10 से ज़्यादा अंक प्राप्त करने वाले विद्यार्थियों का काउंट है 90 एंड सो ऑन। ये लेस देन है और ये मोर देन है। कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन ही निकालना है दोनों भी एग्जाम्पल्स में। अब दोनों एग्जाम्पल में क्या सिमिलैरिटी है? दोनों भी अनग्रुप्ड डेटा है डियर स्टूडेंट्स। अनग्रुप्ड। ग्रुप बने हैं क्या? नहीं, हमें ग्रुप बनाने होंगे सर्वप्रथम। तो ग्रुप बना लेते हैं दोनों एग्जाम्पल्स के। फर्स्ट थिंग टू डू इज convert the given ungrouped data to grouped data. So coefficient of variation निकालना है तो पहले उसका फॉर्मूला लिख लेते हैं, then we will get a idea कौन से कॉलम्स इंसर्ट करना है। coefficient of variation COV is what is the formula for coefficient of variation? Yes, anyone? Coefficient of variation is equal to sigma upon x bar into 100. Sigma is standard deviation, and x bar is mean, arithmetic mean or average or simply mean. तो standard deviation एंड मीन ये दोनों भी हम स्टेप डिविएशन मेथड से निकालने वाले हैं। स्टेप डिविएशन मेथड लगेगा अगर डेटा ग्रुप डेटा है तो डेटा को ग्रुप डेटा में कन्वर्ट करेंगे। पहले फॉर्मूला लिख लेते हैं ताकि हमें आइडिया मिल जाए कि कितने कॉलम्स इंसर्ट करने हैं। तो स्टैंडर्ड डिविएशन का फॉर्मूला है h इंटू स्क्वायर रूट ऑफ समेशन fu स्क्वायर अपॉन n माइनस समेशन fu अपॉन n होल स्क्वायर। ये हो गया आपका स्टैंडर्ड डिविएशन का फॉर्मूला। अब मीन का फॉर्मूला लिख लेते हैं। मीन बाय स्टेप डिविएशन मेथड इज a प्लस समेशन fu अपॉन n into h. So these are two formulas that will be required in both the examples. Both the examples we have to find coefficient of variation. So what columns we will need? एक frequency का लगेगा,
एक u का लगेगा, एक f इंटू यू का लगेगा, एक f इंटू यू स्क्वायर का लगेगा, f इंटू यू स्क्वायर के पहले एक u स्क्वायर का लगेगा, एक क्लास आ जाएगी, एक क्लास की मिड वैल्यू आ जाएगी। तो कॉलम नंबर 1, 2, 3, 4, 5, 6 एंड 7 7 कॉलम्स हमें लगेंगे। तो विद दिस प्लानिंग इन आवर माइंड, लेट अस कन्वर्ट द गिवन डेटा इनटू ग्रुप्ड डेटा। एग्जाम्पल 1 एंड एग्जाम्पल 2 पैरेलल लेते हैं ताकि आपको उसका डिफरेंस समझ में आए। एग्जाम्पल 1 को देखिए, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स फॉर विच एब्सेंट लेस देन 5, 5 दिन से कम एब्सेंट रहने वाले विद्यार्थी है 29, 5 दिन से कम। तो मैं यहाँ पर लिखूंगी नंबर ऑफ डेज एब्सेंट, number of days absent. This is solution to example 1 and here is solution to example 2. Number of days absent, 5 दिन से कम एब्सेंट रहने वाले विद्यार्थी 29 है। मिडल वैल्यू यहाँ आ जाएगी, मिडल वैल्यू x से डिनोट होती है। 5 दिन से कम एब्सेंट रहने वाले विद्यार्थी फ्रीक्वेंसी f, 5 दिन से कम एब्सेंट रहने वाले विद्यार्थी है 29। मतलब जो विद्यार्थी 0 के आगे लेकिन 5 दिन से कम एब्सेंट थे, 0 से ज़्यादा लेकिन 5 दिन से कम एब्सेंट रहने वाले विद्यार्थी 29 है। तो ये मैंने क्लास क्रिएट कर दी। पहली क्लास है 0 to 5, 0 के आगे लेकिन 5 दिन से कम एब्सेंट रहने वाले विद्यार्थी है 29। इसकी मिडल वैल्यू क्या है 2.5। ये मैंने क्लास क्रिएट कर दी। नेक्स्ट क्लास रहेगी 5 to 10, 5 से आगे लेकिन 10 से कम दिन एब्सेंट रहने वाले विद्यार्थी कितने होंगे? 5 दिन से कम एब्सेंट रहने वाले 29 विद्यार्थी है। 10 दिन से कम एब्सेंट रहने वाले 224 है। जो 10 दिन से कम एब्सेंट थे 253, ये जो नंबर है 224, ये इसको भी इंक्लूड कर रहा है क्योंकि 5 दिन से कम एब्सेंट रहने वाले मतलब 10 दिन से कम, मतलब ये लोग यहाँ पर भी है। लेकिन अब मुझे क्लास क्रिएट करनी है, मुझे क्लास क्रिएट करनी है 5 दिन से और 10 दिन से कम एब्सेंट रहने वाले विद्यार्थियों की। 5 से 10 ये क्लास क्रिएट करना है। तो मुझे क्या करना पड़ेगा? 224 में से 29 सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा। ऑल ऑफ यू एग्री विद दिस डियर स्टूडेंट्स? यस सर। नीचे एक क्लास बन रही है 5 से 10, तो उसमें कितने विद्यार्थी रहेंगे? 5 से ज़्यादा अधिक, 5 दिन से ज़्यादा लेकिन 10 से कम दिन एब्सेंट रहने वाले विद्यार्थी कितने होंगे? तो मुझे 224 में से 29 सब्ट्रैक्ट करने पड़ेंगे। यू एग्री विद दिस? तो 5 से 10 इस क्लास की फ्रीक्वेंसी कितनी आएगी? 195। कैसे? 224 माइनस 29 हाउ मच इट इज?
224 minus 29. How much it is? 195. 195. 195. Yes, anyone? 195. 224 minus 29. How much it is? 195. 195. 195. Okay, fine. Fine. It is 195. And what is the mid value of the class 5 to 10? It is 7.5. 7.5. Next class will be those students who were absent for 10 to 15 days. 10 to 15 days. The mid value is 12.5. How many students were absent for 10 to 15 days? 465. For 10 to 15 days, it will be 465 minus 224. 465 minus 224. How much it is? 241. 241. It is 241. Note down this. And from next class will be 15 to 20. Those students who were absent for in between 15 to 20 days, the mid value is 17.5. The count of such students will be 582 minus 465. नीचे वाली वैल्यू ऊपर वाली वैल्यू में से सब्ट्रैक्ट करेंगे. 582 minus 465. How much it is? 117. 117. 117. नेक्स्ट क्लास इज 20 to 25. वो विद्यार्थी जो 20 से 25 दिन के अंदर एब्सेंट थे. इस क्लास की मिडल वैल्यू है 22.5. ऐसे कितने विद्यार्थी है? 634 minus 582. 634 minus 582. 52. नीचे वाली वैल्यू वाले वैल्यू में से सब्ट्रैक्ट होगी. इट इज 52. इक्वल टू 52. नाउ नेक्स्ट क्लास इज 25 से 30 दिन तक एब्सेंट रहने वाले विद्यार्थियों का जो मिड वैल्यू है वो है 27.5. और ऐसे कितने विद्यार्थी होंगे? 10. 644 minus 634. 644 10. minus 634. How much it is? 10. 44 minus 34. It is 10. Next class is 30 to 35. तीस से 35 दिन तक एब्सेंट रहने वाले विद्यार्थी कितने आएंगे? 30 से 35 दिन तक एब्सेंट रहने वाले विद्यार्थी होंगे 650 माइनस 644. नीचे वाली वैल्यू में से ऊपर की वैल्यू सब्ट्रैक्ट होगी और वो वैल्यू रहेगी 650 माइनस 644, दैट इज 6. और इसकी मिडिल वैल्यू है 32.5. नेक्स्ट क्लास है 35 to 40. 35 से 40 दिन तक एब्सेंट रहने वाले विद्यार्थी जिसका मिडिल वैल्यू है 37.5. ऐसे कितने विद्यार्थी होंगे? 3.
653 माइनस 650, नीचे की वैल्यू से ऊपर की वैल्यू सब्ट्रैक्ट होगी, क्योंकि जो 40 दिन से कम एब्सेंट थे वो 35 दिन से कम भी एब्सेंट थे, तो ये वैल्यू सब्ट्रैक्ट हो जाएगी। सो 653 माइनस 650 इज 3। नेक्स्ट क्लास इज 40 to 45, 40 से 45 दिन तक एब्सेंट रहने वाले विद्यार्थी, जिसका मिडल दो। वैल्यू है 42.5। ऐसे कितने विद्यार्थी हैं? 2 655 माइनस 653, ऐसे 2 विद्यार्थी है। इस क्लास की फ्रीक्वेंसी 2 है। आई होप यहाँ तक सभी को क्लियर है। Any questions up till this point? No ma'am. Up to this point, any questions? Shall I proceed further, dear students? Yes. So we have class C, we have their mid values, we have frequency, and now we will have U. And then we will have F into U. Then we have U square, then we have F into U square. These many columns will be needed. So विच फ्रीक्वेंसी इज हाईएस्ट? कौन सी क्लास की फ्रीक्वेंसी सबसे ज्यादा है? यस एनीवन? 241. 10 to 15. यस 10 to 15. 10 to 15. yes yes you may speak. आज कोई बात क्यों नहीं कर रहे? बात कीजिए तो इंटरेक्टिव लगेगा मुझे, नहीं तो उस एंड पे मुझे लगेगा कि पता नहीं। ये समवन प्लीज टॉक टू मी। हाँ हाँ, क्या लिखा है यहाँ पर? Yes ma'am. 10 to 15. मैम आपको आवाज नहीं आ रही? अच्छा, मुझे आवाज नहीं आ रही है। ओके ओके, ये देखिए, ये मेरा ये बंद है, राइट। डियर स्टूडेंट्स, अच्छा, आप बात कर रहे थे लेकिन मुझे आवाज नहीं आ रही थी। अभी आएगी आपकी आवाज? यस, कोई बात करेगा मुझसे? यस यस, ये माइक, स्पीकर्स, ये सब देखना पड़ता है। ठीक है ठीक है, अभी बात कीजिए मुझसे, ठीक है? तो हाँ, कौन से क्लास की फ्रीक्वेंसी सबसे ज्यादा है? 10 to 15. यस यस, 241 सबसे ज्यादा है। फ्रीक्वेंसी का कॉलम देख लो, 10 to 15। तो अज्यूम्ड मीन क्या लेना है? 12.5. यस, मिड पॉइंट ले लेंगे 12.5, सही। तो u इज x माइनस ए अपॉन एच। a 12.5 है, x मिडल वैल्यूज निकाल करके रखी है, h क्लास की ये कितनी है लेंथ? 5. यस 5।
चलिए तो आगे बढ़ते हैं. 2.5 minus 12.5 divided by 5. -2. -2. -2. 7.5 minus 12.5 divided by 5. -1. -1. 12.5 minus 12.5 divided by 5. 0. 17.5 minus 12.5 divided by 5. 1. 1. Yes. 22.5 minus 12.5 divided by 5. 2. 2. Yes. 27.5 minus 12.5 divided by 5. 3. 3. 3. 32.5 minus 12.5 divided by 5. 4. 4. 4. Yes. 37.5 minus 12.5 divided by 5. 5. 5. 42.5 minus 12.5 divided by 5. 6. ओके फाइन. अब f इंटू यू परफॉर्म करते हैं. 29 इंटू -2 -58. -58. 195 इंटू -1 -195. -195. 241 into 0. 0. 117 into 1. 170. 52 into 2. 104. 104. Yes. 10 into 3. 30. 6 into 4. 24. 24. 4. 3 into 5. 15. 15. 2 into 6 is 12. U square. -2 चा square 4. 4. 4. -1 चा square 1. 1. 0 चा square 0. 0. 1 चा square 1. 1. 2 चा square 4. 4. 3 चा 9. square 9. 9. 4 चा square 16. 16. 5 चा square 22. 25. Square 36. 36. Yes. Now f into u square. 29 into 4. 116. 116. 195 into 1. 195. 241 into 0. 0. 117 into 1. 170. 117. 52 into 4. 208. 208. 10 into 9. 90. 6 into 16. 96. 96. 96. 3 into 25. 75. 2 into 36. 72. 72. 72. Yes. So समेशन एफ यू इस कॉलम की ग्रैंड टोटल ये यहाँ से लेके यहाँ तक समेशन एफ यू देगा. समेशन एफ यू प्लीज. -58 -195 +0
plus 117 plus 104 plus 30 49. 49. 49. 49. Yes, summation FU is 49. Summation FU square, ये कॉलम की एंट्रीज को ऐड कर लीजिए. 969. Yes, it is 969. 49, 969. So I think 969. yes, we are ready with the values. अब Summation F. समेशन एफ कितना है? कैपिटल एन इक्वल्स टू 655. यस 655. 655 डेज का डिस्कशन है ना स्टूडेंट्स का. सो 655 स्टूडेंट्स इन्वॉल्व है. सॉरी, 655 स्टूडेंट्स इन्वॉल्व है. तो वेरिएट वैल्यूज आर 655. ये आखिरी का वैल्यू. 655 स्टूडेंट्स इन्वॉल्व है इस डेटा में. 45 डेज तक की अटेंडेंस के बारे में बात हो रही है. तो मीन x बार इक्वल्स टू a की वैल्यू 12.5 प्लस समेशन FU. समेशन FU इज 49 divided by n total number of students involved is 655 into h is class की width है 5. मीन वैल्यू कितनी आ रही है? 12.87. 12.87. मतलब ऑन एन एवरेज बच्चे ऑन एन एवरेज 12.8 मतलब 13 दिन एब्सेंट थे ऑन एन एवरेज. ये डेटा का एवरेज है. ऑन एन एवरेज 13 दिन एब्सेंट थे. ये मीन हो गया आपका. अब स्टैंडर्ड डिविएशन. स्टैंडर्ड डिविएशन सिग्मा इक्वल्स टू h इंटू स्क्वायर रूट ऑफ समेशन FU स्क्वायर समेशन FU स्क्वायर अपॉन n माइनस समेशन FU अपॉन n का होल स्क्वायर. सो 5 इंटू स्क्वायर रूट ऑफ 969 अपॉन 655 माइनस 49 अपॉन 655 होल स्क्वायर. स्टैंडर्ड डिविएशन कितना है इस डेटा का? 6.06. 6.06 राउंड अप 6.06 हो रहा है या 6.07 हो रहा है? 6.07. 6.07. तो अब कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन इस डेटा का सिग्मा अपॉन x बार इंटू 100 इज इक्वल्स टू सिग्मा is 6.07 upon 12.87 into 100 is equals to 47.163. 47.163. 163 is it? 47.163. Yes, ma'am. What about others?
कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन इतना आ रहा है। Yes, ma'am. यस। तो ये हो गया पहला एग्जांपल। ये हो गया पहला एग्जांपल। तो इसमें फ्रीक्वेंसी का ही डिस्कशन था, इसीलिए मैंने इनको दोनों को साथ में ही रखा था। लेस देन होना तो नीचे वाली फ्रीक्वेंसी से ऊपर वाली फ्रीक्वेंसी सब्ट्रैक्ट होकर नीचे वाले क्लास की फ्रीक्वेंसी बनती है। लेस देन हो तो नीचे वाली फ्रीक्वेंसी में से ऊपर वाली फ्रीक्वेंसी सब्ट्रैक्ट करके नीचे वाले की फ्रीक्वेंसी बनती है। लेकिन यहाँ पर मोर देन होगा तो केस डिफरेंट रहेगा। 0 से ज़्यादा अंक प्राप्त करने वाले 100 विद्यार्थी है, 10 से ज़्यादा अंक प्राप्त करने वाले 90 विद्यार्थी है। तो 0 से 10 के बीच में कितने विद्यार्थियों को मिला, ये ऊपर वाले से नीचे वाला सब्ट्रैक्ट होगा। 0 से 10 के बीच में कितने विद्यार्थियों को मिले, 10 के आगे 90 बच्चों को मिले हैं और 0 के आगे 100 को मिले हैं। तो 0 से 10 में कितने मिले, तो ऊपर वाले में से नीचे वाला सब्ट्रैक्ट होके ऊपर वाले क्लास की फ्रीक्वेंसी बनेगी। वो इस डेटा को ग्रुप डेटा बनाते हैं। तो यहाँ पे नंबर ऑफ डेज एब्सेंट के बजाय आ जाएगा मार्क्स स्कोर्ड इन बिटवीन। मार्क्स स्कोर्ड इन बिटवीन, मार्क्स स्कोर्ड इन बिटवीन आ जाएगा। मिड वैल्यू x, marks scored in between, mid value x, frequency f, u is x minus a divided by h, f into u square, f into u square, f into u का स्क्वायर। मार्क्स स्कोर्ड इन बिटवीन, 0 के ऊपर 100 विद्यार्थियों को मिले हैं और 10 के ऊपर जिनको अंक प्राप्त हुए हैं ऐसे 90 विद्यार्थी है। मतलब जिनको 0 के आगे लेकिन 10 से कम, 0 के आगे लेकिन 10 से कम अंक प्राप्त हुए ऐसे विद्यार्थी है 100 minus 90, that is 10. Marks scored in between 0 to 10, जिनका मिड वैल्यू है 7.5, ऐसे 10 विद्यार्थी है, ऐसे 10 विद्यार्थी है। नेक्स्ट क्लास है 10 से 20, 10 से 20 मिड वैल्यू 7.5 to 60 मैडम। सॉरी Five will- सॉरी मिड वैल्यू इज 5। 10 से 20 में जिनको अंक प्राप्त हुए हैं जिसका मिड वैल्यू 15 है, ऐसे कितने विद्यार्थी है। 20 के ऊपर लेने वाले 75 है और 10 के ऊपर लेने वाले 90 है। तो 10 से 20 के बीच में लेने वाले 90 minus 75 रहेंगे। 10 के आगे लेकिन 20 तक जिनको मार्क्स मिले हैं ऐसे 15 विद्यार्थी है। 90 minus 75 is 15। 20 से 30, 20 से 30 में मिलने वाले विद्यार्थी कितने हैं जिसका मिड वैल्यू 25 25 है। 25.
75 माइनस 50 25। 30 से 40 के बीच में मिलने वाले कितने हैं? 30, 30 से 40 का मिड वैल्यू 35 है। 30 से 40 में जिनको मिले हैं मार्क्स, ऐसे 30। चालीस से 50 के बीच में मिलने वाले विद्यार्थी कितने हैं? 10, 10। ट्वेंटी माइनस 10, 50 से 60 में मिलने वाले कितने हैं? 5, 5 है। इसकी मिडल वैल्यू 55 और 60 से 70 में 5, 60 से 70 में मिलने वाले 5 माइनस 0 इज 5। 50 से 60 में 5 और 60 से 70 में 5। तो ये हो गई ग्रुपिंग। ग्रुप बना लिया हमने 0 से 10 के बीच में जिनको अंक प्राप्त हुए से 10 विद्यार्थी एंड सो ऑन। किसकी फ्रीक्वेंसी सबसे ज़्यादा है? 30 to 40, 30 फ्रीक्वेंसी सबसे ज़्यादा है। कौन से क्लास को करस्पॉन्ड कर रही है? 30 to 40, तो अज्यूम्ड मीन 35, 35। 25, यस। assumed mean 35। h कितना है? स्पेसिंग 10 की है। 10, 10, Yes। अब ये जनरेट कर लेते हैं u। 5 x की वैल्यू 5 माइनस 35 डिवाइडेड बाय 10 -3, माइनस 3। 15 माइनस 35 डिवाइडेड बाय 10 -2, -2, 25 माइनस 35 डिवाइडेड बाय 10 -1, +1, 35 माइनस 35 डिवाइडेड बाय 10 0, 45 माइनस 35 डिवाइडेड बाय 10 1, 1, 55 माइनस 35 डिवाइडेड बाय 10 2, 65 माइनस 35 डिवाइडेड बाय 10 3, 3, यस। तो u बनकर रेडी है। अब f इंटू यू परफॉर्म कर लेते हैं फटाफट। 10 इंटू माइनस 3, -30, 15 इंटू माइनस 2, -30, 25 इंटू माइनस 1, -25, 30 इंटू 0, 0, 10 इंटू 1, 10, 5 इंटू 2, 10, 5 इंटू 3। 10, 15, समेशन f कितना है?
100. 100. 100. 100 marks नहीं, 100 students है ना, 100 students, 100 students are involved, 100 students are involved. Summation FU Minus 50. minus 50. U square minus 3 चा स्क्वेअर 9, minus 2 चा स्क्वेअर 4, minus 1 का स्क्वेअर 1, 0 का स्क्वेअर 0, 1 का स्क्वेअर 1, 2 का स्क्वेअर 4, 3 का स्क्वेअर 9. 10 is F. 10 into 9 90. 15 into 4 60. 60. 25 into 1 20. 25. 30 into 0 10 into 1 10. 5 into 4 20. 5 into 9. 45. Summation FU square. Summation FU square 250. 250. 250. Yes. So we are ready for next computations. Mean x bar Ma'am, equals summation of Ma'am, summation of summation f 95. 95 आ रहा है. समेशन एफ है ना, हम यहाँ से कंफर्म कर सकते हैं. ये जो नंबर होता है ना, इतने विद्यार्थी इन्वॉल्व है. हाँ. मोर देन में और लेस देन में ये वाला नंबर टोटल फ्रीक्वेंसी होता है. मोर देन में ऊपर वाली क्वांटिटी समेशन ऑफ ऑल द फ्रीक्वेंसीज, लेस देन में नीचे वाली फ्रीक्वेंसी टोटल फ्रीक्वेंसी. पॉइंट टू बी रिमेंबर्ड. 100 विद्यार्थी इन्वॉल्ड आहेत. इथे पण काउंट केलं तर 100च होईल. 10, 15, 25, 25 आणि 25, 50, 50 आणि 30, 80, 80 आणि 10, 90, 90 आणि 5, 95, 95 आणि 5, 100. 100 विद्यार्थी. Ma'am. ए अज्युम मीन 35 घेतला होता. ए प्लस समेशन एफ यू. समेशन एफ यू इज -50. समेशन एफ यू अपॉन एन. 100 विद्यार्थी आहे, डिवाइड बाय एन 100 इंटू एच. स्पेसिंग 10 की है, 10 मार्क्स. सो हाउ मच इट इज मीन 30. 30. ओके. तो ऑन एन एवरेज 30 है स्कोर क्लास का. पूरी क्लास को देखते हुए जो जिसमें 100 विद्यार्थी है, तो ऑन एन एवरेज 30 मार्क प्राप्त हुए हैं. ये हो गया. अब स्टैंडर्ड डिविएशन सिग्मा. सिग्मा निकालिए कितना है. 15. 15. एच स्क्वेयर रूट ऑफ समेशन एफ यू -50 summation fu upon n summation fu square upon n. Summation fu square upon n minus summation fu upon n whole square is equals to
10 into square root of 15. 250 upon 100 minus 50 upon 100 चा whole square. It is 50. 15. 15. It is 15. No, 15. 15. 1 5. So it is 15. So finally COV is how much? Sigma upon x bar for this example 2 Into 100, ma'am. into 100. Sigma is 15, mean is 30 into 100 50. 50. is 50. So 50. coefficient of variation is 50. And this is how we complete these two examples. Absent less than and marks more than. If you have any questions, you can ask me. Any questions, dear students? No, ma'am. ओके अभी मैं आपको लिंक करती हूँ अपनी अटेंडेंस वहाँ पर वो डालनी है.